Good morning, everyone. Then we are in the previous classes, we have done some numerical on the viscosity and we have discussed the similarities and dissimilarities between the viscous force and the solid frictions. In today's class, we will start to discuss variation of viscosity with the temperature and pressure. What is the meaning of this? कि how the coefficient of viscosity or simply viscosity of a fluid means liquid or gases, how it varies with the temperature and how it varies with the pressure. So first of all, we are going to start effect of temperature, means how viscosity of the fluid varies with the temperature. So first we know that in a fluid we are talking about the substance या matter which can flow, means we are discussing about the liquid and gas both. So first let us start to discuss the viscosity of a liquid, how it varies with the temperature. तो you know that. तो हम पहले बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ द विस्कोसिटी ऑफ, ये हम लिक्विड के केस, ये क्या है लिक्विड केस ऑफ, इन केस ऑफ लिक्विड, in case of liquid what's happening there, you know that if you increase the temperature of the liquid, so what will happen, the molecules will become free. It's clear, their kinetic energy will increase, na? And if the kinetic energy of molecules increases, then what will happen, the intermolecular attractions that will become weaker, na? That will become less. अगर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बिकम स्मॉलर, कम होता जाएगा. और यू नो दैट कि विस्कोसिटी हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लासेस कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो इफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर कम हो रहा है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन ऑन ए विस्कोसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड आल्सो डिक्रीजेज इफ देयर इज ए इंक्रीज इन ए टेम्परेचर. तो रीजन समझ में आ गया. तो आपके पास क्या हुआ, द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, कंक्लूजन इज व्हाट, द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड decreases as increase in the temperature. रीजन क्या है, ड्यू टू increase in kinetic energy of molecules and due to due to the weakness of molecular attraction. मैंने आपको जो याद रखना है वो ये कि अगर लिक्विड की टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, वो कम होती है. यू नो दैट अगर हमारे पास हनी है या अगर विस्कस फ्लूइड्स है तो अगर उनको हम टेम्परेचर राइज करें, उनको हीट करें, तो क्या होगा, देयर फ्लो विल इंक्रीज. इसका मतलब क्या हुआ, उसकी विस्कोसिटी कम हो गई. अब एक एक्सप्रेशन है दैट इज गिवन बाय द स्लॉटले व्हिच शोज दैट मैथमेटिकली कि हाउ द विस्कोसिटी वेरीज विथ द टेम्परेचर. also from Slottle empirical formula, Slottle
empirical formula. What is the meaning of empirical formula? Empirical formula means the formula which based on an experiment. इसका डेरिवेशंस नहीं होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है. दैट फार्मूला इज नोन एज द एम्पिरिकल फार्मूला. तो फ्रॉम स्लॉटले एम्पिरिकल फार्मूला, वेरिएशन ऑफ ईटा विथ टेम्परेचर T इज एज फॉलोज. कैसे होता है? ईटा इज इक्वल टू ईटा 0 at the temperature T divided by 1 plus alpha T plus beta T square. देखिए, जो वेरिएशन है दैट इज नॉट द लीनियर वेरिएशन. ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएशन है बिटवीन द टेम्परेचर एंड द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड. ये बट क्लियर ये है कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करें तो दिस विल डिक्रीज. बस इसका कंक्लूजन ये है. वेरिएशंस आपका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएशन है, इसको आपको प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ नहीं है. तो ये दिस इज द पावर बाय विच विस्कोसिटी विल डिक्रीज. वेयर एनटी क्या है? वेयर एनटी एंड N0 sorry eta 0 are the eta T and eta 0 are the viscosity or coefficient of viscosity, coefficient of viscosity. ये कब है? at temperature at T degree Celsius and eta 0 कब है? at the 0 degree Celsius, and where A and B are constant, and alpha and beta are some constant. This way the viscosity of a liquid depends on the temperature of a liquid. अब हम देख लेते हैं केस 2. In case of gas, in case of gases, लिक्विड के केस में क्या हो रहा है? ईटा विल डिक्रीज इफ देयर इज राइज इन टेम्परेचर. बट इन गैसेस में क्या होता है? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होता है? अब एक चीज हम समझते हैं, विस्कोसिटी ऑफ गैस किसकी वजह से होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मूविंग लेयर टू द अदर मूविंग लेयर. डिफ्यूजन की वजह से होता है. डिफ्यूजन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मूविंग लेयर टू द अदर मूविंग लेयर, तो इनके बीच विस्कोसिटी विल एराइजेज. तो बट अगर आप देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. और ये आप पढ़ते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिपेंड करता है? एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. आप हमेशा याद रखिएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ऑफ ए गैसेस मॉलिक्यूल दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. एंड हाउ इट डिपेंड्स? It is directly proportional to the square root of the temperature. So viscosity of a gases also depend on the temperature, and it is directly proportional to the square root of the temperature. Means conclusion is what? कि the viscosity of gases increases with increase in temperature. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? दैट विल इंक्रीज ड्यू टू increase in diffusion as rate of diffusion is directly proportional to the square root of T. ये तो होता है. Therefore
द विस्कोसिटी क्या होता है? ऑफ द विस्कोसिटी, देयरफॉर विस्कोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट द विस्कोसिटी ऑफ द gases increases with the increase in temperature, but viscosity of the liquid decreases with the increase in temperature. And how it depends? The viscosity of a liquid is at temperature T will be equal to viscosity of a liquid at 0 degree Celsius divided by 1 plus alpha T plus beta T square. And in case of gases, viscosity of gases is directly proportional to the square root of the temperature. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का अगर हमें नॉलेज हो कि कौन सा लिक्विड आपका कितना विस्कस है, कितना कम विस्कस है, कितना ज्यादा विस्कस है, तो फ्रॉम दैट अगर डेली लाइफ में उसके एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ में उसका यूज क्या है, कि नॉलेज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड और लिक्विड. देयर इज सो मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस of the knowledge of the coefficient of viscosity. Few of them we are going to discuss. First of all that कि अगर हमें मान लीजिए if we know कि how the viscosity varies with the temperature, अब इसकी वजह से क्या होता है, we can make a lubricants for a given machine in different season. तो क्या है, in case of deciding, in a case of selecting, in case of selection of lubricants for machine in different seasons, in different seasons. ये समझ में आया कि अगर हमें मान लेते हैं कि हाउ इट वेरीज, टेम्परेचर के साथ किसी भी यू नो दैट कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, विस्कोसिटी तो आपकी डिक्रीज करती है, बट किसका कितना वेरिएशन होता है अगर वो हमें पता चल जाए तो वी कैन डिसाइड कि हम किस सीजन में किस लुब्रिकेंट का यूज करें फॉर ए मशीन. ठीक, तो ये तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया इन डेली लाइफ. सम अदर एप्लीकेशन इज आल्सो देयर, उसको डिस्कस कर लेते हैं. कि अगर मान लीजिए क्या है, लिक्विड के पास अगर हाई विस्कोसिटी है तो दैट आर यूज्ड एज बफर फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक्स ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ ए ट्रेन. ये भी इसका यूज है कि इन ए ट्रेन दीज आर यूज्ड एज buffers for absorbing shocks during the shunting of train. ठीक, बाय द नॉलेज इफ यू नो दैट कि हमें कैसे विस्कोसिटी वाले लिक्विड यूज करने चाहिए, इन दिस केस हाई विस्कस आपका. ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका शॉक्स होते हैं दैट विल रिड्यूस्ड. ये हो गया. अब नेक्स्ट है कि अगर क्या है, इफ यू नो द विस्कोसिटी के बारे में तो क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सम ऑर्गेनिक लिक्विड. क्या है, दिस इज यूज्ड, द नॉलेज ऑफ दिस यूज्ड, it is used in determining this is used in determining the shape and molecular weight, shape and molecular weight. This is used in determining the shape and molecular weight of some organic liquid. Weight of some
organic liquid. In this case, like हमारे पास प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, इन दिस केसेस में हमें मॉलिक्यूल्स के साइज क्या है, उनके वेटेड क्या है, दैट कैन बी डिटरमिन बाय द नॉलेज ऑफ द विस्कोसिटी. एक मिल्कियन एक्सपेरिमेंट इज देयर, वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, टू फाइंड आउट द E/m, मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय एन मिल्कियन एक्सपेरिमेंट. तो वो यूज करता है द नॉलेज ऑफ द विस्कोसिटी, या द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी इज यूज्ड इन मिल्कियन एक्सपेरिमेंट. तो क्लियर. तो ये भी यूज कर सकते हैं कि मिल्कियन क्या है, मिल्कियन यूज्ड knowledge of viscosity in determine the charge of an electron. In determination of charge on an इलेक्ट्रॉन. ये भी आपका एप्लीकेशन है. तो फ्रॉम दिस हमें प्रैक्टिकल लाइफ में विस्कोसिटी का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है. तो फ्रॉम दिस 4 पॉइंट्स वी कैन डिसाइड. देयर इज सो मेनी अदर एप्लीकेशंस आर देयर, बट उतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना है. वी हैव टू डिसाइड हियर कि अगर हमें मान लीजिए लुब्रिकेंट्स डिसाइड करना है फॉर डिफरेंट सीजन, तो वी कैन नो अबाउट दैट. इन केस ऑफ ट्रेंस में, संटिंग के टाइम्स में, अगर एब्जॉर्बिंग शॉक को कम करने के लिए वी आर यूजिंग द हाई विस्कस फ्लूइड्स लिक्विड. दिस इज यूज्ड टू डिटरमिन द शेप एंड molecular weight of organic liquid. By the knowledge of this Millikan experiment can we find out the charge of an electron. These are some practical application of the knowledge of the viscosity.